Raman, Rashi, Avi. मैंने कोई क्लास थी मेरे कल तो मैम की एसआरए थी तो पहले हो चुकी थी, बाद में एसआरए थी। वैसे नहीं है। ओके, काम करो फटाफट आगे लिखना जहाँ तक कल छोड़ा था। इनको बता दो कल कितने पेज थे बस। अनिकेत को बता दो। क्लार्क वर्सेस हचिंस कर लिया था ना कल। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस स्काई जेम्स कर लिया था। चला था स्काई जेम्स जब आपने मुझसे पूछा था क्या मैम। हाँ, ठीक है चलो अब आगे लिखते हैं हम। कॉम्पटॉय डी चैट वर्सेस लुई डी राइडर, ये भी कर लिया था। करना क्या है अब। Ouch. हाँ जी एक बार वो लिख लो। तो कल इनवॉइस ऑफ गुड्स विच शोज द प्राइस ऑफ गुड्स, लास्ट पॉइंट लिखा था सी। ओवर इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस तक ये तक लिखा था। इसके नीचे केस लॉ लिख लो, नेक्स्ट लाइन बना लो। कॉन्शिप कंटेनर, CONTSHIP, कॉन्शिप कंटेनर लाइंस लिमिटेड वर्सेस डी के लाल 2010 सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court differentiated between CIF and FOB, CIF and FOB contracts and observed that in case of CIF, delivery of goods and ownership in goods, delivery of goods and ownership in goods is complete when the documents are handed over to the buyer, and in case of FOB and in case of free on board, comma, delivery of goods is complete when goods are boarded on the ship, full stop, during the transit in both types of contracts, comma, the goods are at the risk of the buyer, but the buyer has an option to reject the goods if after examination
The goods do not match the description. The goods do not match the description. Section 40 heading बना लो और इसका केस लिख लो. Bull versus Robinson. Bull, B-U-L-L versus Robinson. 1854. Seller, 1854. Seller undertook the responsibility. Seller undertook the responsibility to deliver iron bars. To deliver iron bars at a distant place. At a distant place via ship. Via ship. Full stop. Iron became a little dull and rustic. A little dull and rustic when it came to the buyer. It was held that this was normal wear and tear and the seller is not responsible. And the seller is not responsible. Section 41. आपको पता है 62 में जैसे हम पढ़ते नहीं है 62 सेक्शन में वेयर एनी राइट ड्यूटी और लायबिलिटी वुड अराइज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ इट मे बी नेगेटिव और वेरिड. तो मतलब ये जो जनरल चीज है वेयर एंड टियर वाली, क्या इससे भी उल्टी बात कॉन्ट्रैक्ट में करी जा सकती है? हाँ, करी जा सकती है. सेक्शन 62 इज गोइंग टू ओवरराइड एवरीथिंग. यस, यस, यस. और इसमें अगर बोलते जाए कि अगर ये इतना नुकसान भी जो भी होगा रास्ते का वो सारा बायर सेलर भरेगा तो सेलर ही भरेगा. जनरल रूल है कि वो नहीं भरेगा तो 62 वर्क्स एज एन एक्सेप्शन. यस, ठीक है. 62 हेड, इसमें 41 हेडिंग डाल लो. सॉरी 41 डालना, 41 ना. ठीक है. इन CIF comma ownership passes in CIF ownership passes the moment the goods are transferred for a price. The moment the goods are transferred for a price, but this transfer एक मिनट, हमने इस पहली लाइन लिखी है, पूरी लाइन बताओ प्लीज. CIF क्या? गुड्स की जगह डॉक्यूमेंट्स कर दो क्योंकि CIF में डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं सिर्फ. ठीक है, ये गुड्स वर्ड नहीं चल रहा है यहाँ पे. Ownership passes the moment the documents are transferred for a price, but this transfer of ownership is subject to final examination by the buyer. Stop. He can reject and repudiate the contract. Next paragraph. Section 41 talks about two stages. First, where the goods are delivered
at buyer's place, buyer can reject them. Can. Buyer can reject them after examination. Buyer can reject them after examination. Second point. The buyer can request the seller. The buyer can request the seller to examine the goods before delivery. To examine the goods before delivery. And the seller is bound to afford reasonable opportunity. Reasonable opportunity. Buyer can waive off his right. Buyer can waive off his right at this stage because in every case he will have that right at later stage. बाद में लेटर स्टेज अपने घर पे आएगा तब तो कर ही सकता है. वहां पे भी मैं बोल सकती हूँ एग्जामिन कर लो. वहां पे कर सकते हो. ठीक है, वहां पे नहीं कही तो अपने घर पे तो आगे कर ही सकते हो. हमने देखा कि यहाँ पे दो स्टेजेस है. अब देखो ना दो स्टेजेस कैसी हैं. पहली स्टेज है यू कैन एग्जामिन वेयर at your place. You can examine at buyer's seller's place, right? Seller's place or the place of delivery, place of the. I'm not examining. I ask you, can I examine? ठीक है, and you are bound to give me the reason, the chance to examine. If I waive of that right कि घर जाके करूँगी, then I can do it घर जाके also. This is the case. ठीक है, in both cases you can examine at that place also. मतलब अपने घर आए तब एग्जामिन कर लो, उस जगह पे भी एग्जामिन कर सकते हो जहाँ से लेने लगे हो. ऐसे. ठीक है, move ahead. Please ask. Yes. Qualify. Yes. और डिफेक्ट्स हम जानते हैं पेटेंट होते हैं, लेटेंट होते हैं. ठीक है, अगर लेटेंट डिफेक्ट है, इफ डिफेक्ट वाज लेटेंट ही कैन रिजेक्ट द गुड्स. सेक्शन 16 मतलब सेक्शन 16 के पैरेलल बनता है कि यार वो वाला हमने पढ़ा नहीं था, जो गुड्स पहले दिख रहे हैं पहली नजर में रिजेक्ट कर देना चाहिए था, लेके क्यों गए. लेटेंट पेटेंट वाला हिसाब यहाँ पे लग जाता है. ठीक है, 42 के बारे में लिख लीजिए. एक्सेप्टेंस पे लिखिए कुछ. एक्सेप्टेंस कैसे कैसे हो सकती है, चार्ट बना लो. ऐसे 3 लाइनें बना लो चार्ट की. पहला एक्सप्रेसली, दूसरा कॉन्डक्ट, एक्सप्रेसली दूसरा कॉन्डक्ट. ब्रैकेट में चाहे कॉन्डक्ट के लिख दो कि एनी एक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी टू द एक्ट ऑफ सेलर. ठीक है, राइट ऑफ सेलर लिख दो, बेटर है. कॉन्ट्राडिक्टरी टू द कॉन्ट्रेरी या कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ भी टू द एक्ट राइट ऑफ सेलर. और थर्ड लिख दो बायर हैज फर्दर डिस्पोज्ड ऑफ और कंज्यूम्ड. बायर हैज फर्दर डिस्पोज्ड ऑफ और कंज्यूम्ड. ये सेकंड के साथ थोड़ा थोड़ा कॉन्सोनेंस में मैच कर रहा है, कोई बात नहीं. बायर हैज फर्दर डिस्पोज्ड ऑफ और कंज्यूम्ड. केस लिख लो. मेसर्स M/S ओम एंटरप्राइजेस, मेसर्स ओम एंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. AIR 2008 पटना. AIR 2008 पटना. There was one district magistrate.
there was one district magistrate acting on behalf of the government, acting on behalf of the government, and he ordered plastic coated map, plastic coated map for a seminar, for a seminar. Seller delivered and buyer accepted the goods. Seller delivered and buyer accepted the goods. DM returned the goods. DM returned the goods after 15 days as the seminar was cancelled. As the seminar was cancelled. And no price was paid to the seller. And no price was paid to the seller. The seller contended that the goods had already been accepted. Goods had already been accepted. Stop. Here there is a presumption of acceptance and seller will be paid accordingly. इसमें माना गया रीजनेबल टाइम का लैप्स हो गया. Next, Hardy and Company versus Hillers, 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 Hillers and Fowler, Fowler, 1923. Seller delivered some quantity of wheat. Seller delivered some quantity of wheat to the buyer. ये तो मुझे उससे सिमिलर लग रहा है यार, ब्रिटानिया बिस्किट्स वाला केस नहीं करा था, है ना, कि रिटर्न कर देना 3 महीने के अंदर अंदर ना, वो भी तो करा था ना. कुछ वैसे वो भी फिट कर सकते हैं. Buyer delivered some quantity of wheat to the buyer. Full stop. Buyer did not give any intimation. एक्चुअली 24 के साथ ही हम इसको देखते हैं क्वालिटी को, ये एक्सेप्टेंस एक्चुअली चीज क्या है. मैंने भी यही सोचा था. Buyer did not give any intimation as to the acceptance or rejection. But buyer further sells some wheat to a person C. Here this is deemed acceptance. And seller and as buyer acted in contradiction to the interest of the seller. Forty-four, 43 रहने दो, कुछ नहीं है. 44 के बारे में लिखो. 43 वही था, सामान लेके कौन जाएगा, रिजेक्ट हो गया तो. This section applies in case
in case where the property in the goods is passed to the buyer, property in goods is passed to the buyer, full stop. When the goods are ready, when the goods are ready, but the buyer, but the buyer did not take its delivery, but the buyer did not take its delivery within a reasonable period of time, within a reasonable period of time, comma, then buyer is liable for any loss, then the buyer is liable for any loss to the seller for refusal, for refusal, for refusal, and ignorant when the buyer is liable for any loss to the seller for refusal to take delivery, and also for other reasonable charges incurred by the seller, reasonable charges incurred by the seller in taking care of the goods, taking care of the goods. Full stop. This right of seller is not effected where the refusal by the buyer amounts to a repudiation of amounts to the repudiation of a contract, and even after the contract is terminated, seller will be liable to recover any damage, liable to recover, liable नहीं होगा हाँ, entitled to recover any damage or loss incurred because of buyer's conduct, even though the property, even though the property revested in the seller, revested in the seller. हाँ जी, अब बारी आ जाती है हमारा सेक्शन नंबर 45 अनपेड सेलर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये वाले सेक्शंस इंपॉर्टेंट सेक्शन में नहीं मानती हूँ, कभी भी नहीं मानूंगी। इससे पहले वाले 44 तक, ठीक है। 31 से 44 आई विल नेवर कंसीडर देम टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मींस, नेवर। डी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा 44 नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी किसके साथ? ओनरशिप के साथ। कैसे? रिस्पांसिबल ओनरशिप यार, कैसे जाएगा? राइट, risk has already passed. Yes, yes, right, absolutely correct. Okay, अब बारी आ जाती है यार, हु इज एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा सेलर कौन होता है। ठीक है, सेलर हमने देखा था यार, सेलर 213 में डिफाइंड था शायद, द पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल। ठीक है, सेल्स और अग्रीज टू सेल। अब सवाल आ जाता है यार, सेल या अग्री टू सेल लिखा गया तो क्या मेरा मर्केंटाइल एजेंट, मैंने क्या करा, मैंने मेरा सामान मेरा मर्केंटाइल एजेंट बेचता है, ठीक है, तो क्या मेरा एक मर्केंटाइल एजेंट सेलर की कैटेगरी में आ सकता है?
आंसर इज यस. अगर वो सेलर की कैटेगरी में आ सकता है तो क्या वो अनपेड हो सकता है? हुआ क्या? उसने अपनी जेब से पैसे दे दिए थे कहीं, है ना? या उसने एक सामान खरीदा था, उसने एक सामान खरीदा, उसी ने आगे बेच दिया, बट आगे उससे अभी पैसे आए नहीं है. ठीक है, तो क्या एक मर्केंटाइल इंटेलिजेंट अनपेड सेलर हो सकता है? द आंसर इज यस. ठीक है. अब जब हम पढ़ेंगे तो विल रियलाइज कि यार एक अनपेड सेलर एक ऐसा बंदा है जिसको चाहे पूरे पैसे नहीं आए चाहे 10 रुपए भी कमाए हैं, वो भी अनपेड ही रह जाता है. अनपेड की कैटेगरी में ही कंसिडर करा जाता है, चाहे पूरे पैसे नहीं आए चाहे थोड़ा सा पोर्शन अमाउंट का नहीं आया हुआ है. लेट अस जस्ट सी वंस. The seller of goods is deemed to be an unpaid seller within the meaning of this act. पहला, when the whole, please underline whole of the price, has not been paid or tendered. Tendered का मतलब होता है ऑफर करना. ठीक है, मैंने ना दिए ना ही आपको ऑफर करके मैं देती हूँ. नेक्स्ट, when the bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled by reason of the dishonor of the instrument or otherwise. आपको सर चेक लगा दिया, कोई चेक लगा दिया और चेक के डिसऑनर हो गया. ठीक है, आपको मैंने बोला था 10 तारीख को चेक बेयर करेगा, जो निकलवा लेना चेक के पैसे. आप 10 तारीख को पहुंचे, वहां पे जाके देखा चेक तो डिसऑनर हो चुका है. ठीक है, तो तभी आप अनपेड सैलरी रहे. ठीक है, कोई भी ऐसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या एनीथिंग लाइक दैट जिसमें कोई ऑब्वियसली चेक इज अ कंडीशनल पेमेंट, इस तारीख को होनी है ना, ये सारी कंडीशनल पेमेंट्स मानी जाती है. अगर वो कंडीशन ही पूरी नहीं हुई तो पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट नहीं हुई तो आप अनपेड ही रह गए, खत्म. ठीक है, ओके. In this chapter, the term seller includes any person who is in the position of a seller, as, for instance, an agent of the seller, to whom the bill of lading has been endorsed. हुआ का जिसके नाम पे मैंने एजेंट, अब ऑब्वियसली सामान एजेंट ने लेने आना था, मैंने उसके नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया है. ठीक है, तो जिस एजेंट के नाम पे मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, और कंसाइनर एजेंट हु हैज हिमसेल्फ पेड और इज डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर द प्राइस. तो बेसिकली कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी जेब से निकाल के पैसे देगा वो हमारे लिए सेलर की कैटेगरी में आ जाएगा. ठीक है, इसका पैसा लग रहा है वो हम उसको सेलर मान लेंगे. ठीक है, जिसने अपने पैसे से, सपोजिबली होगा क्या अब, क्योंकि एजेंट के नाम पे मैंने सामान भेजा, सपोजिबली हाँ हाँ, राइट 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 राइट. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ. हाँ जी, इन्होंने बोला यार ये जनरल रूल जो हमने पढ़ ली, आपको पता है ये जो हमने चीज पढ़ी है ना अभी, कि कंडीशनल पेमेंट, एनआई के केस में कंडीशनल पेमेंट होती है ना, ये तो हम पढ़ी है ना. इन्होंने बोला यार इसके अलावा उल्टी बात भी करी जा सकती है. उल्टी बात क्या करी जा सकती है कि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट हुई तो हम उसे कंडीशनल नहीं मानेंगे, हम उसे पूरी पेमेंट मान लेंगे. क्या ऐसी कोई चीज भी डिसाइड करी जा सकती है? हाँ, करी जा सकती है. अब सोचो, मैंने डिसाइड कर लिया था, हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर लिया था कि पेमेंट हमारी बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू होगी, लेकिन कंडीशनल पेमेंट नहीं मानी जाएगी वो. ठीक है, जैसे आप बिल ऑफ एक्सचेंज दोगे मैं मानूंगा आप पेमेंट करोगे, कंडीशनल नहीं है वो. बात पता है क्या है, होल का क्या मतलब है यहाँ पे, यही हमें समझाया गया था उस टाइम पे. जो याद है होल का, उन्होंने बोला वर्ड होल है, पूरी की पूरी पेमेंट होनी चाहिए. ये उस सेंस में पढ़ो उसे. इट इज नॉट कि पार्ट में या पार्ट में अनपेड हो, या उन्होंने बोला अगर पूरी नहीं हुई ना, होल नहीं हुई, पूरी की पूरी, रादर इसको पूरी नहीं ऐसे देखो, पूरी नहीं देखो, पूरी की पूरी देखो. अगर पूरी की पूरी नहीं हुई तो वो अनपेड रह जाएगा, ऐसा माना जाता है. हाँ, वहां पे ऐसे ही लिखा था. हाँ हाँ हाँ, राइट. नहीं, यहाँ पे होल का मतलब पूरी की पूरी है. रीड इट एज, हाँ एग्जैक्टली, रीड इट एज, रीड इट, यस यस, होल नहीं हुई है, एग्जैक्टली उस सेंस में. मैं कुछ बात बोल रही थी. हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. मैं बोल रही थी यार देखो, नेगोशिएट हमने बोल दिया यार कि ये पेमेंट हम कंडीशनल नहीं मानेंगे.
तो सोचो मैंने ऐसी बात कर ली कि यार ठीक है मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज देना, मैं मान लूंगा आपकी पेमेंट हो गई, तो यार हो सकता है जिस दिन डेट क्लियर कर रही हो उस दिन आप वो क्या कहते हैं डिसऑनर हो जाए। तो कहते हैं अगर ऐसा हो गया, आपने पहले डिसाइड कर लिया था कि कंडीशनल नहीं है और आपको पैसे नहीं मिलते हैं फिर भी, तो आपकी रेमेडी अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जाएगी, यहाँ पे नहीं। ठीक है, फिर आप रेमेडी जाके एनआई में देखो, हमारे पास मत आओ। अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया था कि कंडीशनल नहीं है, ठीक है, फिर आप अनपेड नहीं रहे, फिर आप एनआई में चल जाओ। सही बात। यही मैंने बोल दिया, जिस दिन मुझे चेक पकड़ाएगी ना अनिकेत, जिस दिन मुझे चेक पकड़ाओगे मैंने मान लेना आपकी पेमेंट हो गई है। अगर मैंने ऐसी बात कर दी, वो अनकंडीशनल हो गया ना। कंडीशनल तो ये था जिस दिन पेमेंट होगी उस दिन मानूंगी, है ना। अनकंडीशनल हो गया जिस दिन अनिकेत ने मुझे चेक पकड़ाना है उसी दिन पेमेंट मानी जानी है अनिकेत की। लेकिन चेक पे तारीख है 10 तारीख की लगी, अब 10 तारीख आने वाली है, मैं 10 तारीख को जाती हूँ और डिसऑनर होता है चेक। तो अनिकेत का तो मैं तो अनपेड हूँ, मैं सोगा मैं रेमेडी लेने आऊंगा। तो मैंने बोला अनपेड कहाँ से, पहले डिसाइड नहीं कर लिया था कि जिस दिन चेक दूंगी उसी दिन से पेमेंट मानी जाएगी तुम्हारी। तो फिर अनिकेत कहाँ जाए, अनिकेत जाए अब एनआई में 138 में। क्रेडिट वाला पॉइंट, एडवांस पेमेंट वाला नहीं। बायर ने पहले पेमेंट करनी थी, करी, राइट। हाँ हाँ। सेंस कैसे बना रहा है ये। पेमेंट पहले, सामान बाद में। हाँ हाँ। तो, तो सामान, तो फिर तो सामान भी नहीं गया ना। लेकिन वे बाबा फिर तो सामान भी नहीं गया ना, तो फिर तो अनपेड कैसे हो गया। सैलरी नहीं हुआ, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, अगर सामान ही नहीं गया पापा फिर तो वो नहीं बना ना, है ना। ठीक है। सेल, हाँ, let us just try to fit in, okay. यार कंडीशनल पेमेंट तो वो होती है ना यार कि कोई ये देखो ये कंडीशन नहीं है दैट आई विल पे योर मनी आफ्टर 6 months, पे टुडे। अब देखो, हाँ अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं ना यार, बिल ऑफ एक्सचेंज हम बनाते हैं उसमें क्या लिख देते हैं, Puneet has to pay me 1 lakh rupees and ये कंडीशन है। कंडीशनल क्या है इसमें कि he will pay me, supposedly I've added कि every 6 months he'll pay me in installments, he'll pay me this is all conditional। anything which is not instant is there is a condition lying underlining। उस सेंस में देखो तो इट मेक सेंस यार कि चेक या सब पे एक कंडीशन है अटैच्ड कि आज नहीं पैसे मिल रहे, है ना। लाइक कोई डेट होगी या कोई काम होगा तो मिलेंगे ऐसे करके, ओके। इन दिस चैप्टर द टर्म ये हो गया। let me just see 45B के बारे में लिख लो प्लीज। पेमेंट बाय बिल्स, पेमेंट बाय बिल्स is normally conditional payment, is normally conditional payment, full stop, where payment by acceptance of, where payment by acceptance of bill of exchange or any negotiable instrument, or any negotiable instrument is stipulated for, is stipulated for comma, it is prima facie condition, it is prima facie condition, it is prima facie condition on the bills
पता है कल ना ये I was having an argument बोल रही हूँ discussion with Akanksha मैम regarding पुट्टा स्वामी ओनली. ठीक है, तो ना लकीली मेरे पास मेरी डायरी मिल गई जिसमें मैंने पुट्टा स्वामी का स्पेशली एलजीबीटी को मेंशन कर रखा था आगे, है ना. तो मतलब लिटरली उसमें ऐसे कर रखा था नाज फाउंडेशन, नवतेज सिंह जौहर, पुट्टा स्वामी, एक दो और केसेस ऐसे. ठीक है, और मैंने कहा ये सीक्वेंस वो नहीं कर रहा, वो नहीं था मेरे उसमें. अब ए और डी नहीं थे दोनों. हाँ, अब मतलब गरारी इसमें तो अड़ी हूँ कि ए करूँ कि डी करूँ. उसमें तो ए आया, मैम ने भी यही बोला था, आपने भी यही बोला था, लेकिन डी भी तो नहीं है यार. हाँ. हाँ. हाँ, यही आप देखो, मैं बताती हूँ क्या हुआ. मेरे को पहली बार अल्ट्रासाउंड दिमाग में आया, एकदम से पहले इंस्टेंस में वही आ रहा था, है ना. लेकिन फिर मैंने सोचा यार कभी मैंने जिंदगी में पढ़ा है, कभी जिंदगी में ना मैंने कहीं पे कुछ लिखा हुआ है. फिर मेरे दिमाग में वो पिक्टोरियल मेमोरी, कुछ नहीं काम है मेरी जिंदगी में, पिक्चर काम आई कि मेरी नोट्स की वो फोटो मेरी आंखों के सामने छपकी कि यार पुट्टा स्वामी वर्ड लिख रखा है मेरे यहाँ पे, वो मैंने उसमें क्यों लिख रखा, तो पक्का कुछ ना कुछ होगा. तो इसीलिए मैंने उसको स्किप करा. मैंने ये तो पक्का नहीं है, ये नाबिया वाला है या दूसरा नीचे वाला लास्ट वाला. आपने बताया था. हाँ. राइट, मैंने सुना ही नहीं था, मेरे दिमाग में दोनों फर्स्ट और डी, ए और डी में अड़की थी कि क्या है यार ये. लैंडमार्क्स नहीं थे यार, वो बिल्कुल भी लैंडमार्क्स नहीं थे. इंपॉर्टेंट जजमेंट मे भी आपने जिसे पढ़ा है, मैंने तो नहीं पढ़ा यार जिंदगी में कभी. डेफिनेटली कोर्ट हुआ है तो डेफिनेटली डेफिनेटली हमारे एंड पे डेफिनेटली प्रॉब्लम है. ठीक है, एनीवे. On the bills being met, on the bills being met, but but this general rule may be excluded. This general rule may be excluded if the intention of the parties, if the intention of the parties is to treat is to treat it as a is to treat it as a final discharge of the debt, final discharge of the debt, leaving the creditor to his remedy, leaving the creditor to his remedy on the bills. It is the question of fact whether the parties, it is a question of the fact whether the parties intended the taking of the negotiable instrument, intended the taking of a negotiable instrument to operate as an absolute payment, to operate as an absolute payment, but presumption absolute payment, but presumption is against it, is against it. Next आ जाओ section number 46, unpaid sellers rights. प्री के लिए मार्क करना 46 का पेड क्वेश्चन, 46 आता ही आता है प्री में. Subject to the provisions of, ये जो वर्ड है ना, this act and any other law for the time being in force, ये प्री में आया था. बंदे को नहीं पता होता यार, पता है इन्होंने क्या करा है, इन्होंने क्वेश्चन डालना है कि जो सारे सेलर्स के सारे राइट हैं, अनपेड सेलर के सारे राइट हैं, व्हाट आर दे सब्जेक्ट टू. ऑप्शन था सोगा, सेकंड था एनी अदर लॉ ऑफ द टाइमिंग इन फोर्स, थर्ड था बोथ, फोर्थ था नन, ऐसे करके. ठीक है,
ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था राइट ऑफ लियन इज सब्जेक्ट टू होगा एनी अदर ऑफ द टाइमिंग फोर्स, बोथ नन। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो अनपेड सेलर के जनरल राइट्स हैं दे आर सब्जेक्ट टू एवरीथिंग, मतलब बोथ। लेकिन सिर्फ लियन या सिर्फ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये दोनों अकेले के लिए अगर इंडिपेंडेंटली देखोगे तो आप देखो, एक बार मेरे साथ देखो सेक्शन 47 की पहली लाइन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो मतलब अगर लियन अकेला आ जाए तो इट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ ओनली सोगा। नेक्स्ट आ जाओ, सारी ऊपर। हाँ, इन्होंने पता क्या करा है, जब मैं पढ़ रही थी ना मुझे ऐसा लगता था कि यार ये अगर ये इसके तो पार्ट है ना। 14 जैसे आपके मन में सवाल आ रहा है, मेरे मन में सेम सवाल आ रहा था कि यार 45 को आप बोल 46 को आप बोल रहे हो कि यार सारे राइट जो हैं दे आर सब्जेक्ट टू सोगा एंड ऑल अदर लॉस, है ना। बट फिर मैंने चीज समझी, वो पता क्या समझी, मैं आपको बताती हूँ। अपने आप को कन्विंस करने के लिए यू हैव टू टेल यू समथिंग, राइट, टेल योरसेल्फ समथिंग। पहले आप ये सुन लो कि जो जनरल अगर राइट्स आ जाए, अनपेड सेलर के राइट्स क्या है, तो आप इसका आंसर बोथ मार्क करना है कि दे आर सब्जेक्ट टू से सोगा आल्सो एंड एनी अदर लॉ ऑफ द टाइमिंग इन फोर्स। लेकिन अगर लियन आ जाए, या सेक्शन 50 देखो एक बार, सेक्शन 50 की पहली लाइन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, लियन की भी वही लाइन है जो स्टॉपेज एंड ट्रांजिट की पहली लाइन है। तो अगर ये दोनों इंडिपेंडेंटली आ जाए तो आपने आंसर मार्क करना है होगा। डन, ठीक है, ओके। They are subject to the provisions of this act and for any law of the timing in force, notwithstanding, please underline, that the property in the goods may have passed to the buyer. हम अब जो चीज पढ़ने लगे हैं, हम जो गुड राइट्स पढ़ रहे हैं अनपेड सेलर के, इसमें आपको एक चीज क्या याद रखने वाली है, वो याद रखने वाली चीज ये है कि राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर को मैं दो पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड कर सकती हूँ। वो दो पार्ट्स क्या हैं? ओनरशिप हैज पास्ड, ओनरशिप हैज पास्ड, और दूसरा ओनरशिप इन गुड्स हैज नॉट पास्ड। ठीक है, ओनरशिप इन गुड्स हैज पास्ड का क्या मतलब है भाई? सीधी सी चीज जानते हैं, बायर इनका ओनर बन चुका है, मैं नहीं हूं ओनर, मैं बेचने वाली हूं, मैं सेलर हूं, मैं ओनर नहीं रही। अब देखो ना, गुड्स जब मेरे नहीं रहे आपके हो गए तो मैं तीन राइट्स एक्सरसाइज कर पाऊंगी उनपे। अगर गुड्स मेरे नहीं रहे आपके हो गए, इसका मतलब क्या है कि मैं उनपे तीन राइट्स एक्सरसाइज कर पाऊंगी एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एक ना वर्ड, एक टर्म यूज है यहाँ पे लिए, यहाँ के लिए, जब ओनरशिप पास नहीं होती है। एक चीज समझना प्रैक्टिकली, मेरी चीज है, मैं अपनी चीज के ऊपर लियन एक्सरसाइज कैसे कर सकती हूँ? लियन का मतलब होता है रिटेन करना, है ना। ये तो लियन अगर पहली टर्म है ना, अपने कब्जे में रखना। आपकी चीज है, अपने कब्जे में कैसे रखोगे? आपकी चीज है तो आपकी है ना यार, वो कब्जे में तो किसी और चीज को रखा जाता है। तो लियन इज कब्जा ओनली। कब्जा किस चीज पे किया जाएगा? जो किसी और की है। जो चीज आपकी है ना, आपकी चीज को जब आप अपने पास रखते हो, उसके लिए टर्म यूज होती है विद होल्ड। विद होल्ड डिलीवरी, की आप डिलीवरी नहीं कर रहे, एक ही है। ठीक है, अपनी चीज को अपने पास रखते हो तो उसको विद होल्डिंग कहते हैं, कि हम डिलीवरी विद होल्ड करके रखते हैं, हम दे नहीं रहे तेरे को सामान, पहले पैसे दे। ठीक है, जब भाई हो ही किसी का गया तो हम कब्जे में रख के बैठे हैं, पहले पैसे, चल पैसे पकड़ा यार, अनपेड हूं मैं। नेक्स्ट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, एसआईटी, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रास्ते में रोकना, ट्रांजिट इज रास्ता। मुझे पता लगा मैं सामान बेच रही हूँ, पहुंच रहे हैं पुनीत का दिवाला निकल गया, पुनीत हैज बिकम इंसॉल्वेंट नाउ। मैं अब कहती हूँ यार वापस से सामान मोड़ लूं, कैरियर को बोलती हूँ सामान वापस मोड़ ला, पैसे नहीं मिलने। ठीक है, और ये ट्रांजिट कब कब रहता है, ये प्री में बहुत क्वेश्चन आते हैं। लास्ट मैंने देखे प्री में क्वेश्चन कहते थे, कैसे थे, इस बार तो क्वेश्चन ही नहीं आए। क्वेश्चन कैसे रहते हैं प्री में? इसमें ना 7-8 चीजें दी गई हैं 51 में। ठीक है, जिसमें जो बोलता है 50 के 51, 51 है ना, हाँ। जिसमें ये बताया गया यार, सोचो हम डिलीवरी वाले को बोलते नहीं है, अच्छा तो पहुंच गया लोकेशन पे, काम कर,
2 गलियां ऐसे मुड़, सामने मेरा घर है। लोकेशन नहीं डाल पाते कई बारी, है ना, मुझे बोलते हैं दो यहाँ पे स्टॉप पे आ जाओ, लैंडमार्क बता देते हैं और बोलते हैं यहाँ से 2 गलियां आगे आ जाओ भैया, यहाँ पे मिल जाएगा आपको घर। तो जैसे ही वो डिलीवरी वाला वहां पहुंचता है, हम मानते हैं जब उसने वहां पे पहुंच के हमें फोन करा ना, आपका सामान आ गया, माना जाता है डिलीवरी हो गई है, चाहे आप तक पहुंचा नहीं है। तो ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो चुकी है, ट्रांजिट खत्म हो चुका है। तो ट्रांजिट कब कब खत्म होता है, ये सारी सर्कमस्टांसेस हम सेक्शन 51 में स्टडी करते हैं जी। जब वो वहीं पे, जैसे मैंने फोन में लाया ना आपको, हम पढ़ेंगे सारी चीजें, तो माना जाता है ट्रांजिट खत्म। ट्रांजिट खत्म तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म, है ना। जैसे आप देखो ना, मैंने आपको सामान भेजा, आपको डिलीवरी वाले ने फोन कर दिया चौक पे पहुंच के, मैं पहुंची, आप बताओ कहां पे डिलीवर करना है। अब सोचो, सेलर को पता लग जाता है श्रद्धा को तो दिवाला निकल गया, सेलर कहता है वापस ले आ, वो कहता है क्या है वापस ले आ, ट्रांजिट में आप स्टॉप कर सकते थे, ट्रांजिट खत्म, मैंने बायर को फोन कर दिया हुआ है, ट्रांजिट खत्म। ऐसे आपने सामान मंगाया था अमृतसर, कि अमृतसर डिलीवर करना, मैं क्या करती हूँ, मैं जलंधर से सामान उठा लेती हूँ, डिलीवरी हो रही थी अमृतसर, पर मैंने जलंधर में से सामान पकड़ लिया बीच में से, रास्ते में से, ट्रांजिट खत्म। आप लेके गए सेलर के पास सामान, बायर के पास डिलीवर करने के लिए, बायर ने बोल दिया मैंने नहीं एक्सेप्ट करना, ले जा वापस, बायर ने बोल दिया मैंने एक्सेप्ट नहीं करना, ले जा वापस, ठीक है। अब वो ट्रक वाला लेके घूम रहा सामान, ठीक है, जब तक ट्रक वाले के पास सामान है हमारे ट्रांजिट खत्म नहीं हुआ, सेलर ने बायर ने रिजेक्ट कर दिया ना, रिजेक्शन होगी ना, पर मैंने आपको फोन करा, आपने रिजेक्ट कर दिया कि आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैम, माना जाता है जब तक वो गुड्स रास्ते में है वो ट्रांजिट में ही है। तो ऐसे की बहुत सारी सर्कमस्टांसेस हम 51 में स्टडी करने वाले हैं कि ट्रांजिट कब खत्म होता है और कब नहीं होता, बस ये, है ना। और ये वाला जो राइट है ना एसआईटी का, वो सिर्फ एक केस में एक्सरसाइज होता है, फिर ये वाला राइट नहीं होगा, खत्म, आपका राइट गया एसआईटी, हाँ खत्म, यस खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला राइट एसआईटी सिर्फ एक केस में एक्सरसाइज होता है, वो है इंसॉल्वेंसी ओनली। कब आप एक्सरसाइज करते हो, ओनली इन वन सिचुएशन वेयर द पर्सन हैज बिकम इंसॉल्वेंट। लास्ट राइट हमारे पास बच जाता है, राइट ऑफ रीसेल। अगर वो पेरिशेबल गुड्स हैं तो इमीडिएटली, वरना नोटिस देके, सामान खरीदना है कि बेच दूं, सामान लेके जाना है कि बेच दूं, नहीं देने पैसे, मैंने सामान रख रखा है, पैसे देने के आगे बेच दूं, अगर पेरिशेबल है तो पूछने की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। ये सारी चीजें हम आगे चल के 54 में देखने वाले हैं। आपको याद होगा, अगर मैंने आपको सेक्शन 27 के एक्सेप्शन भी बताई थी, सेक्शन 54 मैंने बोला था 27 के 8 एक्सेप्शन है, 8वें एक्सेप्शन बाद में समझेंगे, वो जब बाद में अब आने वाले हैं वहां पे, तो वहां पे जाके देख लेंगे, ठीक है, ओके। उसको गोली मारो, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है उसको गोली मारो, कोई फायदा नहीं, उसको इग्नोर करो, ठीक है। अच्छा, अच्छा, हाँ वो जो बोला गया उसको बोल, वही बात हुई, हाँ 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 राइट। मैंने खुद को हमेशा, थैंक यू, बस पानी है, ये देखो मैं खुद ही ले आई थी, थैंक यू। सुनो भैया, चाय बना दो प्लीज, थैंक यू। मैंने कहा मैं खुद को हमेशा से ऐसी, खुद को ना जब पढ़ रही थी, खुद को पढ़ा रही थी, तो मैंने खुद को ये बोला कि ये वर्ड है तो मतलब इसका मतलब होता है कि जो बोल रहे हैं उसको गोली मारना, जो पहला बात है उसको गोली मारो, ठीक है। तो बात वही सेम सेंस बनती है कि डज नॉट मैटर यार, इग्नोर करो, ठीक है, हाँ ओके, एनीवे आ जाओ। प्लीज लेट अस रीड सेक्शन 46 क्लॉज 1। ओके, शुरू से देखते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी लॉ ऑफ राइमिंग इन फोर्स नॉटविथस्टैंडिंग दैट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मे हैव पास्ड टू द बायर, द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स एज सच हैज बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ। प्लीज, इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या है, बाय इम्प्लाइड राइट्स, इम्प्लाइड राइट्स है उसके, ठीक है। क्या राइट्स है उसके इम्प्लाइड, lien on the goods for the price while he is in the possession of them। अगर मेरे पास ही पड़े हैं तो मैं उस पर लियन एक्सेस करूंगा, अगर मेरी पोजेशन में है तो ही मैं लियन एक्सेस कर सकती हूँ, मेरी पोजेशन से निकले मतलब ट्रांजिट में चले गए, फिर लियन खत्म।
ठीक है, हमें पेपर में ना बहुत बार क्वेश्चन आता है, राइट ऑफ लियन एंड्स वेयर एसआईटी बिगिंस, वेयर ट्रांजिट बिगिंस। पेपर में स्टेटमेंट आती है और होता है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। लियन एंड्स वेयर एसआईटी बिगिंस, ऐसे करके क्वेश्चन होता है कुछ, एक्सप्लेन। अब समझाते रहो कि लियन क्या है, एसआईटी क्या है, और लियन फिर यहाँ पे आपको टर्म्स कौन सी एक्सप्लेन करनी पड़ती है, पोजेशन वाली सारी बातें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। लियन है रिटेन करके रखना, while you are in possession of them you can only retain, तभी when you are in possession of them, है ना। possession से बाहर निकल गए, मैंने रिक्शे वाले को पकड़ा दिया, मेरी possession खत्म, अब क्या हो गया, वो ट्रांसिट है। अब मैं कब कर सकती हूँ, सिर्फ एक केस में रास्ते में रोक सकती हूँ। हुआ क्या, मैंने रास्ते में रोक लिए, सोचो, रोक के मैंने कहा वापस ले आ, जरा वापस ले आया, मैंने फिर से लियन शुरू कर दी, ये होता है। ठीक है, लियन, ट्रांजिट, ट्रांजिट में रोक लिया, वापस लिया, दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड देन रीसेल। These are 3 rights available, है ना। Okay. A lien on the goods for the price while he is in the possession of them. Second, in case of insolvency of the buyer, a right of stopping the goods in transit after he has parted with the possession of them. यहाँ पे था in the possession, यहाँ पे है parted with the possession. ठीक है, अलग हो जाना, part ways, ना। Third, a right of resale as limited by this act, वो हम देख लेंगे। ठीक है, यार विद होल्डिंग को लेके एक्चुअली मैंने यही बताना है आपको पॉइंट, एक बार पूरा पढ़ ले फिर बताती हूँ। ठीक है, प्री प्री भी प्री के राइट ऑफ रीसेल वाला क्वेश्चन प्री में काफी बार आ जाता है, इसको प्री के लिए स्पेशली मार्क करना। और ये जो इंसॉल्वेंसी की बात करी गई है ना, ट्रांजिट वाली इंसॉल्वेंसी, ये इंसॉल्वेंसी हमारी प्रिजम्पशन नहीं है। इंसॉल्वेंसी यहाँ पे कौन सी इंसॉल्वेंसी है, एसआईटी एक्सेस करने के लिए इंसॉल्वेंसी व्हिच इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, जो बताई गई है। हाँ, एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना, ये तो है ही, but insolvency must have been declared by the court for the purpose of being declared for purpose of exercising SIT. Yes, यहाँ पे नहीं लिखी गई है, but whenever we are wanting, अच्छा मुझे कहूँ जी बंदे का दीवार निकल गया, मैंने सामान वापस मंगा लिया, आपको कैसे पता निकला है 100%? आर यू श्योर? वो तभी 100% डिक्लेरेशन होगी जब कोर्ट डिक्लेयर करेगा। ठीक है, declaration of insolvency must be by court, ये बैराक पे लिख लो। ठीक है, और 46 क्लॉज 2 देखो एक बार, वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास्ड टू द बायर। प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास से क्या मतलब है, मतलब सोचो मैंने बोला था अनिकेत ओनरशिप तभी होनी है जब पैसे आने हैं, ये गुड्स तुम्हारे तभी जब पैसे आने हैं, अब पैसे नहीं आए हैं, है ना। तो द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास ऑब्वियसली, द अनपेड सेलर हैज in addition to other remedies, please underline in addition to his other remedies, we'll discuss that. Comma, a right of withholding delivery similar to and co-extensive with his rights of lien and SIT where the property has passed to the buyer. ये ना लास्ट लाइन को ना ऐसे मत समझना कि लियन और एसआईटी भी एक्सरसाइज करी जा सकती है, सिमिलर एंड को एक्सटेंसिव टू ला, देखो ना ये वर्ड ऐसे पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ना है, सिमिलर टू एंड को एक्सटेंसिव विद हिज राइट्स ऑफ लियन एंड एसआईटी वेयर द प्रॉपर्टी हैज पास्ड। लियन और एसआईटी कब होता है, जब प्रॉपर्टी हैज पास्ड, और ये जो राइट विद होल्डिंग का राइट है ना, हैज नॉट पास के केस में है, शक्ल इसकी वैसी ही दिखती है जैसे कि एसआईटी, जैसे कि लियन वगैरह की दिखती है। ठीक है, बात सुनो, थैंक यू। जैसी शक्ल हमें लियन की दिखती है ना, किस केस में, जो प्रॉपर्टी हैज पास्ड, वैसी शक्ल विद होल्डिंग की है जो प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड, मोर देन इनफ। ऐसे यार ऐसे समझ लेना। write down something. 46 क्लॉज 2 के ऊपर लिख लो यार थोड़ा सा,
property in the goods has not passed to the buyer, has not passed to the buyer, and the buyer has not paid price, and the buyer has not paid price to the seller, and the buyer has not paid price to the seller, comma, the seller being still the owner of the goods, the seller being still the owner of the goods, can have no such right, can have no such right as lien, can have no such right as lien, as a man, as a man cannot have lien on his own goods. As a man cannot have lien on his own goods. But he has a right to withhold delivery. But he has a right to withhold delivery of goods until price is paid, until price is paid, even though the sale was on credit, even though the sale was on credit. हाँ, इसका मतलब क्या है? हो सकता है मैंने आपको उधारी पे सामान बेचा है, क्या है कि मतलब आप सामान आज खरीद रहे हो पर 3 महीने बाद पैसे होंगे, लेकिन डिलीवरी पास नहीं हुई है, तो क्या मैं विदहोल्ड कर से रख सकती हूँ कि यार 3 महीने तक मैं गुड्स अपने पास ही रख रही हूँ, तब तक पैसे नहीं आ रहे, ओनरशिप पास नहीं हुई है ना? तो क्या मैं विदहोल्ड करके रख सकती हूँ डिलीवरी कि जब 3 महीने तक पैसे नहीं आ रहे मैं सामान नहीं दे रही? आंसर इज यस। इवन ऑन क्रेडिट इट इज पॉसिबल, जब तक ओनरशिप पास नहीं हुई तब तक हम विदहोल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। This is not considered to be a breach by the seller. This is not considered to be a breach by the seller. And the seller is only exercising his right given under section 46. खत्म, ये विद होल्डिंग के केस में है। अब एक बार के लिए फटाफट 3 कीवर्ड्स याद रखना है, जब भी हमने बात लियन की करनी है हमारे को 3 कीवर्ड्स याद होने चाहिए। वो 3 कीवर्ड्स क्या हैं? पहला है ओनरशिप पास्ट, दूसरा कीवर्ड है पोजेशन आपके पास, और तीसरा है राइट टू रीड, मतलब इसका मतलब है राइट टू रिटेन। ठीक है, आपके पास सेलर, पोजेशन विद सेलर, ओनरशिप बायर, ऐसे लिख दो ना, ओनरशिप बायर, पोजेशन सेलर, राइट टू रिटेन, खत्म लियन। ठीक है, 47 पे आ जाओ एक बार। अनपेड सेलर्स लियन, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ने लगे ना, इट इज लिंक्ड विद पोजेशन, टाइटल के साथ कोई लेना देना है ही नहीं मोस्टली। ठीक है, लियन तभी जब आपके पास पोजेशन है। आ जाओ एक बार देखते हैं सब्जेक्ट। अच्छा हाँ, अब ये बात आ गई सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट क्यों लिखा है, एंड वहां पे नीचे नीचे दिस एक्ट क्यों लिखा है, ऊपर एनी द लॉ क्यों लिखा है? क्योंकि यार जो मैंने खुद को समझाया वो यही समझाया कि इन्होंने अलग अलग, क्योंकि किसी बुक में किसी नेट पे ये चीज एक्सप्लेन नहीं है,
जितना मैंने खुद को समझाया क्वेश्चन के हिसाब से, वो मुझे यही समझ आया कि यार ये जो विद होल्डिंग डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, जो विद होल्डिंग डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट है, इसको लेके ना कहीं पे नहीं लिखा गया, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है इसको लेके। तो मैं मानकर चल रही हूँ कि जो विद होल्डिंग डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो होता होगा सोगा के भी सब्जेक्ट और बाकी एक्ट्स के भी सब्जेक्ट में, क्योंकि बाकी सभी अलग अलग से देखे जाएं तो दे आर ओनली सब्जेक्ट टू दिस एक्ट सोगा। एक विद होल्डिंग डिलीवरी वाले को लेके एक्सप्लेन नहीं कर रखा कुछ, तो कपल करके अगर चारों को एक साथ देखा जा रहा है तो वी कैन जस्ट कंसिडर दे आर सब्जेक्ट टू दिस एक्ट एंड एज अ लॉ ऑफ द राइमिंग फोर्स। यू हैव टू जस्ट क्रैम इट फॉर द पर्पस ऑफ प्री, इसके बाद जिंदगी में कहीं नहीं आना है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ नीचे, सेलर्स लियन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, अंडरलाइन कर लेना, द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हु इज इन द पोजेशन ऑफ देम। और पहला तो हमने पढ़ लिया, अनपेड सेलर है, पोजेशन में है, इज एंटाइटल्ड टू रिटेन पोजेशन, ठीक है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिटेन पोजेशन ऑफ देम अंटिल पेमेंट और टेंडर ऑफ द प्राइस। पेमेंट हो गई है, यहां बोला कि मैं देता हूं, इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली पहला केस क्या है, where the goods have been sold without any stipulation as to credit। इसका मतलब क्या होता है, मैंने गुड्स उधारी पे थोड़ी दी है आपको। अगर मैंने गुड्स, सोचो आप ऐसे सामान लेके चले गए, घड़ी आपकी हो गई, आप हर महीने मेरे को देते रहना पैसा, कोई चक्कर नहीं है, हम उधार पे देते हैं यार सामान। अब मैं कहूं कि मैं नहीं दूंगी सामान, अगर आपने बेचा ही क्यों उधार पे, आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, दोनों चीजों में फर्क है, कंफ्यूज मत होना। इसमें उधार पे सामान दे रहे हैं लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, इसमें उधार पे सामान दे रहे थे बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी, ठीक है। जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, ठीक है, तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट। अब क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, subject to the provisions of this act, the unpaid seller of goods who in possession of them is entitled to retain possession of them until payment or tender of the price is made in the following cases where the goods have been sold without any stipulation as to credit। अगर आपने उधार पे गुड्स दिए थे तो आपको लियन का एक्सरसाइज नहीं, लियन का राइट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, where the goods have been sold on credit but the term of credit has expired। मैंने आपको गुड्स बेचे थे 6 महीने के अंदर, पेमेंट 7वां महीना चढ़ गया है, पेमेंट नहीं आई है, क्या अब मैं लियन एक्सेस कर सकती हूँ अगर मेरे पास पोजेशन है? पक्का समझ आ रहा है क्या चल रहा है? अगली इंस्टॉलमेंट नहीं ना, पूरी पेमेंट का टाइम है 6 महीने। अब देखो हो सकता है इन सच केसेस एनीथिंग, कोई ऐसी ऐसी चीज लगा लो कि जिसकी डिलीवरी मे बी, अच्छा देखो, हाँ डिलीवरी गाड़ी है, कार लेनी है, पहले बात हो गई है कि कार की पेमेंट पहले 6 मंथ्स में हो जाएगी ताकि 1 जनवरी को रिलीज होती गाड़ी आपके पास पहली। हो सकता है, हो सकता है, मैंने बोला था फर्स्ट 6 मंथ्स में पेमेंट हो जाएगी, है ना। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, पहले 6 महीने में मतलब जैसे ही आपने मुझे सपोजिटली वो लगाते हैं डाउन पेमेंट करी, आपको आपको डिलीवरी ट्रांसफर डिलीवरी हो गई है, लेकिन अब ओ सॉरी, लेट अस टेक एन एग्जांपल लाइक दैट ना, टर्म में कंफ्यूजन, ओनरशिप पे देख रही हो ना, ऐसे करके देख रहे हैं ना, देखो डाउन पेमेंट करी, ओनरशिप ट्रांसफर, डाउन पेमेंट करी थी 5 लाख, कर दी। अगर देखो ना ओनरशिप किस पे डिपेंड करती है ट्रांसफर होना, सपोजिटली गाड़ी पड़ी है अंदर, ऐसे लेते हैं, सेक्शन 22 के रूल्स क्या थे, 22 के एसेंशियल्स क्या थे, 20 के क्या थे, स्पेसिफिक गुड्स, डिलीवरेबल स्टेट, अनकंडीशनल सेल, ये लेते हैं, ये तीनों एसेंशियल्स ले लेते हैं। अनकंडीशनल सेल थी, हाँ नहीं ये तो काटना पड़ेगा फिर, अगर ये वाले सारे एसेंशियल देख देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। एक मिनट रुको, अगर आप उसी दुकान पे गए, आपने दुकान पे जाके बोला कि सामान पड़ा है ये वाला, मैं आपको वीकेंड पे पैसे देती हूँ, ये सामान मेरे लिए रख लो, होता है, ये सामान मैं वीकेंड पे पिक कर लूंगी या जैसे भी मैं अपने आप पिक कर लूंगी, वीकेंड पे आपको पैसे आ जाएगा, यहाँ कल आपको पैसे मिल जाएंगे, आप इसे मेरे लिए साइड पे करके रख लो, मैं उठा लूंगी, यहाँ दे जाएंगी, यहाँ डिलीवर कर देना, एनिवर्सरी आ रही है, कुछ भी हो रहा है,
तो मुझे बताना अगर गलत फॉर्म फॉर्म हो रहा है एग्जाम्पल, मुझे लग नहीं रहा गलत जा रहा है। ठीक है, हो गया जी बात। अब हुआ क्या, पेमेंट क्रेडिट पे दी गया था, उधारी थी, लेकिन ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई थी क्योंकि वो गुड स्पेसिफिक थे, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट था और डिलीवरेबल स्टेट थी। ठीक है, ओनरशिप 20 के अकॉर्डिंग इमीडिएटली ट्रांसफर पास हो गई है। सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग ऐसे केसेस में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, हो गई। ठीक है, अब हो गई ट्रांसफर। अब क्या हुआ, वीकेंड आ गया, उधारी कब तक थी, वीकेंड तक की। ठीक है, वीकेंड हो गया खत्म, मंडे चढ़ गया। मंडे को सपोजिबली डिलीवरी होनी है, मैं डिलीवरी नहीं कर रही, मैं क्या कर रही हूँ, उन गुड्स पे लियन एक्सरसाइज कर रही हूँ। कर सकती हूँ, आंसर यस, क्योंकि टाइम ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। ऐसे ठीक है। पहला है, अगर आपने उधार पे दिए हुए थे, सोचो अगर पेमेंट होनी थी संडे तक, बट पिछले वेंसडे को ही मैं कहती हूँ मैंने इतना सामान, मैं कहती तू पागल है, पेमेंट तूने उधार पे दी है यार। लेकिन अगर उधार का टाइम खत्म हो गया, उसके बाद आप लियन एक्सेस कर सकते हो, जब तक उधार का टाइम है तब तक नहीं कर सकते। इसका अप्रोप्रिएशन का सोचो, उसके लिए वो एसेंशियल्स फुलफिल कर दो, कर दी नहीं, फिर अप्रोप्रिएशन जैसे ही करी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, जी हो गई, राइट, राइट, आ गया बिल्कुल। सारे एसेंशियल्स पूरे कर दोगे ना, जब किसी भी सेक्शन के कर दो, 22 के, 21 के कर दो, 22 के कर दो, 23 के कर दो, 24 के कर दो, किसके भी एसेंशियल्स पूरे कर दो। हाँ जी, हाँ ठीक है, हम्म, राइट, राइट, हाँ, राइट, कुछ भी फिट कर दो, सब कुछ फिट हो रहा है। वो सारे सेक्शन जो ओनरशिप ट्रांसफर करने रिलेटेड है, वो उनको सारे एसेंशियल्स पूरे कर दो, क्योंकि हमने मेन मकसद ओनरशिप ट्रांसफर करना है। ओनरशिप ट्रांसफर करना, पोजेशन अपने पास रखना, ये दोनों हो जाएंगे तो लियन एक्सेस हो जाएगा, खत्म। चले आगे, ओके। थर्ड वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। अब बात आ गई यार, इंसॉल्वेंसी तो उस केस में होती थी, एसआईटी के केस में, क्या लियन के केस में भी इंसॉल्वेंसी हो सकती, इंसॉल्वेंसी रीजन हो सकता है। हुआ क्या, मैं घर पे बैठी हूँ, मैंने सामान बेचना है अभी अनिकेत को, मुझे पहले पता लग गया अनिकेत का दिवाला निकल गया, मैं बेचूंगी नहीं, मैं दूंगी ही नहीं, मैं अनपेड हूँ, पोजेशन मेरे पास है, चाहे ओनर अनिकेत है, बट मुझे पता लग गया अनिकेत से पैसे नहीं आने, तो मैं सामान बेचूंगी ही नहीं, भेजूंगी ही नहीं अनिकेत को, खत्म। तो इंसॉल्वेंसी, एसआईटी के केस में, एसआईटी तो सिर्फ और सिर्फ इंसॉल्वेंसी के केस में करते हैं ना, लियन बहुत सारे केसेस में कर सकते हैं, लेकिन इंसॉल्वेंसी भी एक रीजन है, ऐसा। ठीक है, ओके, विल मूव अहेड। प्लीज राइट डाउन, सेलर्स लियन
You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. We'll pause for 1 2 minutes and then we'll start.